If you look at the map of mid 18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them of today. What we know today as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdoms, duchies, and cantons whose rulers had their autonomous territories. Autonomous territories means independent territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people, different people. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Often, they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. The Habsburg Empire that ruled over Austria Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria, and the Sudetenland, as well as Bohemia, with the aristocracy were predominantly German speaking. It also included the Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia. In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. In Galicia, the aristocracy spoke Polish. Besides these three dominant groups, they also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant peoples, Bohemians and Slovaks to the north, Slovenes in Carniola, Croats to the south, and Romans to the east in Transylvania. Such differences did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding these diverse groups of people together was a common alliance to the emperor. How did nationalism and the idea of nation state emerge? Aristocracy and the new middle class. Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. They owned estates in the countryside and also townhouses. They spoke French for purpose of diplomacy and in high society. Their families were often connected by ties of marriage. The powerful aristocracy was, however, numerically a small group. The majority of the population was made up of the peasantry. To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners, while in the eastern and central Europe, the pattern of landholding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. In western and parts of central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production of the market. Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of German states it occurred only during the 19th century. In its wake, new social groups came into being: a working class population and middle class made up of industrialists, businessmen, professionals. In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century. It was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity
following the abolition of aristocracy, privilege granted or gained popularity. So what we have noticed so far in the making of nationalism in Europe, हमने ये देखा है कि जो आज अगर हम जो नक्शा देखते हैं यूरोप का, ये वैसा नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। जो पुराना नक्शा है, जो जर्मनी, जो इटली या स्विट्ज़रलैंड हम आज देख रहे हैं, ये किंगडम्स में डिवाइडेड थे। किंगडम्स में थे, डचीज़ में थे, कैंटन्स थे, छोटे छोटे राज्य में डिवाइडेड थे। यहाँ पर हैब्सबर्ग एम्पायर चलता था। यहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। ये पूरा एक पैचवर्क था। कहीं पे अलग अलग लोग की अलग अलग बोली थी, भाषाएं थे, लोग अलग अलग एथनिसिटी को बिलोंग करते थे, अलग अलग कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते थे। इन सब का जोड़ जो था वो केवल ये जोड़ था कि वहाँ का उनका जो राजा था वह एक था। तो ऐसा नहीं कि इनमें नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि राजा जो था वो अपने आप को इन सबसे अलग ही मानता था। वह फ्रेंच बोली बोलता था, खास करके आपस में, एरिस्टोक्रेसी में। और ये जो राजा जो लोग थे, जो अलग अलग राजा थे, वह एक दूसरे से शादी के संबंध में बंधे हुए थे। इस प्रकार से इनकी रिश्तेदारी चलती थी। जो ये एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, ये एक डोमिनेंट क्लास थी। इनके पास बड़े बड़े महल हुआ करते थे, बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी। जो गांव की तरफ है वहाँ पर उनकी भरपूर ज़मीन होती थी, वहाँ पर उनका एक मैनर हुआ करता था, और शहरों में भी टाउन हाउसेस होते थे। लेकिन ये जो एरिस्टोक्रेसी जो क्लास था, ये न्यूमेरिकली बहुत छोटा ग्रुप था। उंगलियों में हम इनके संख्या गिन सकते थे। जो बल्क था, जो ज़्यादा जो लोग थे वो पीजेंट्स थे, लेकिन जितनी भी ज़मीन थी, ज़मीन के जो हकदार थे वह ये एरिस्टोक्रेसी लोग थे। तो फिर इस दौर में 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड जो है वह इंडस्ट्रियलाइज नेशन बनना चालू हो गया। फ्रांस और जर्मनी, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा सा देरी से हुआ। इंग्लैंड में इट वाज द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी जहाँ पर ये इंडस्ट्रियलाइज बनने लगे, लेकिन फ्रांस और जर्मनी ये 19th सेंचुरी में अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज बनने की कोशिश की गई थी। जब इंडस्ट्रीज बनने लगे, फिर एक नया सोशल ग्रुप तैयार हुआ, वो था एजुकेटेड मिडिल क्लास। लेकिन ये एजुकेटेड मिडिल क्लास था वो काफ़ी संख्या में काफ़ी कम थे। फिर जो लिबरल्स जो थे, लिबरल माइंडेड जो क्लास था, जो इनके जो आइडियाज़ थे नेशनल यूनिटी का, ये इसके बाद में ये एक दूसरे को सहयोग करते हुए यूनाइट किए, और धीरे धीरे इनमें पॉपुलैरिटी आने लगी, और ये तरीका काफ़ी पॉपुलर हुआ। What did liberal nationalism stand for? Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. The term liberalism derives from the Latin root liber, meaning free, है ना, liberty, liberalism, तो आज़ादी, सोच की आज़ादी। For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. Politically, it emphasized the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges. A constitution and representative government through parliament. 19th century liberals also stressed the inviolability of private prosperity. तो ये लिबरलिज्म क्या था यूरोप में? हाँ, ये टर्म जो लिबरल है, इट कम्स आउट फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लिबर मीनिंग्स फ्रीडम। तो ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, इनके मन में ये बिल्कुल
स्पष्ट था, क्लियर था कि हमें आज़ादी किससे चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए एरिस्टोक्रेसी से। जो एरिस्टोक्रेसी है, जो क्लर्जीज है, जो प्रीस्ट है, ये दो क्लासेस थे, है ना, जो दो स्टेट्स थे। यूरोप में 3 स्टेट्स थे, द क्लर्जी, द एरिस्टोक्रेसी एंड द पीजेंट्स। इनमें से केवल टैक्स कौन भरता था? पीजेंट्स भरते थे। बाकी सब आज़ादी इन दोनों क्लासेस को मिलते थे। जो एरिस्टोक्रेसी और क्लर्जी क्लास को आज़ादी मिलती थी, ज़मीन खरीदना वही खरीद सकते, टैक्स नहीं भरते, पूरा मेहनत जो काम करना है, टैक्स भरना है, जो पीजेंट क्लास का था। तो जो मिडिल क्लास था वो अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर थे कि अब जो सरकार बनेंगी वह जनहित की सरकार बनेंगी, जनता के मत से सरकार बनेंगी। दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। और सभी लोग जो रहेंगे वो कानून के नज़रों में एक जैसे रहेंगे। किसी को भी अपने बर्थ के प्रिविलेज नहीं मिलेंगे कि आप राजशाही परिवार में हैं तो आप कानून से ऊपर है, ऐसा नहीं बनेगा। जो 19th सेंचुरी में जो लिबरल्स थे उनका जो मेन स्ट्रेस था वो इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार केवल राजा महाराजाओं का ही नहीं, जिस किसी में क्षमता है वह प्राइवेट प्रॉपर्टी संपत्ति दंपति खरीद सकता है। येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। यहाँ पर एक कमी थी, हर किसी को वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया था। यू विल रिकॉल दैट इन द रिवोल्यूशनरी फ्रांस, विच मार्क्ड द फर्स्ट political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected were granted exclusively to the property owned men. केवल वही लोग वोट दे सकते थे या इलेक्शन में कंटेस्ट करते थे जिसके पास ज़मीन जायदाद थी, यानी जो टैक्स भरते थे। Men without property and all women were excluded from political rights. Only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage. However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced the women to a status of a minor subject to authority of fathers and husband. तो एक छोटे से दौर में जब जैकोबिन्स थे उस वक़्त औरतों को अधिकार मिला, लेकिन जब नेपोलियनिक कोड लागू हुआ तो वापस से जो औरतें थे वह अपने पिता के या अपने पति के संपत्ति कहलाए जाते थे। उन्हें वही करना पड़ता था जो उनके पिता कहेंगे या उनके पति कहेंगे। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, women and non-propertied men organized opposition movement demanding equal political rights. तो इसका परिणाम क्या हुआ? कि इसका परिणाम ये हुआ कि जो जिसके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं थे और जो औरतें थे उन्होंने इसका विरोध किया, इसका रिवोल्ट किया, इसका विद्रोह किया। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of makers and the abolition of state-imposed restriction on the movement of goods and capital. During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle class. तो व्यापार से अगर देखा जाए, व्यापारी रूप से देखा जाए तो लिबरलिज्म का मतलब क्या कि हमारा जो मार्केट है वह खुला मार्केट होना चाहिए। हमें किसी भी प्रांत में एक स्टैंडर्ड टैक्स के ऊपर हमें हमारे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की अनुमति मिलना चाहिए। जो स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस है वह लागू नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द एमर्जिंग मिडिल क्लास। ये इनकी एक दृढ़ डिमांड था, स्ट्रॉन्ग डिमांड था। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states. Each of these possessed its own currency and weights and measurements. A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his good would have to pass through 11 customs barriers and pay custom duties of about 5% at each one of them. तो नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस होने से पहले कितनी आपत्ति थी व्यापारियों के लिए। 39 छोटे मोटे स्टेट्स हुआ करते थे और कोई व्यापारी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, जैसा
हैम्बर्ग से नर्मबर्ग उसको अगर अपना सामान बेचना है तो उसे ऐसे 11 कस्टम ड्यूटीज़, 11 टोल नाके से गुजरना होता है, जहाँ पर हर वक्त उसे 5% टैक्स चुकाना होता था। Duties were often leveled according to weights and measures of the goods. As each region had its own system of weights and measures, thus involved time consuming calculation. The measure of cloth, for example, were the LA, which in each region stood for different length. An LA of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeters of cloth. In Minas, 55.1 centimeter, and in Nuremberg 65.6 centimeter, in Freiburg 53 centimeters. तो कितनी वेरिएशंस थी इवन मेजरमेंट्स में। 1 मीटर कपड़ा जो है था उसको एलए में गिना जाता था। तो जो एलए जो था वह हर रीजन में अलग अलग माप का था। फ्रैंकफर्ट में उसका 54.7 सेंटीमीटर उसका माप था, वही एलए माइंस में 55.1 सेंटीमीटर का हुआ, नर्मबर्ग में 65 सेंटीमीटर का हो गया और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर का हो गया। तो कितना टाइम कैलकुलेशन में, कितना टाइम वेस्ट होता था कैलकुलेशन में और उसके टैक्स को इवॉल्व करने में। सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल to economic exchange and growth by the new commercial class, who argued for the creation of a unified economic territory. तो व्यापार के लिए एक बहुत बड़ी आपत्ति थी, बहुत बड़ी बाधा थी। तो व्यापारियों का डिमांड था कि सब तरफ एक जैसा मेजरमेंट होना चाहिए, सब जगह एक जैसे टैक्सेस होना चाहिए। In 1834, a custom union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2। 30 से 2 पर करेंसीज को उतार दी गई, यानी अभी केवल इस इलाके में 2 करेंसीज, 2 प्रकार के करेंसीज या पैसा चलता था। A wave of the creation of a network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interests to national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at that time. तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? जब ऐसी करेंसीज रिड्यूस हो गई तो उनको लगा कि ये करेंसी इस इलाके में चलती है तो हम एक है, तो इससे अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। तो 1834 में एक कस्टम यूनियन बना जिसे ज़ोल्वरिन भी कहा जाता है। इसका इनिशिएटिव किसने लिया था? प्रूशिया ने लिया था। हाँ, और बहुत सारे जर्मन जो स्टेट्स थे उन्होंने इस एसोसिएशन को ज्वाइन किया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि सभी जो स्टेट्स थे वह आपस में व्यापार करने के लिए करेंसीज को रिड्यूस कर दिए, मेजरमेंट्स को रिड्यूस कर दिए, यूनिफॉर्म कर दिए, जिससे क्या हुआ कि ना केवल ट्रेड बढ़ा लेकिन लोगों के दिल में यूनिटी की भावना भी बढ़ गई। आज हम यहीं पे रुकते हैं, आने वाले क्लास में हम इससे आगे चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए।